Hello students, now today we are going to continue the same chapter. See page number 137, cyber safety. So last time I have told you how we can do protect our confidential information. Now today we are going to learn online safety. The internet has revolutionized communication and it has become the lifeline of any organization with the rapid growth of internet and its application in diverse fields. Security risks also have increased. Nowadays internet use is increasing day by day because there are so many reasons. We have no time, we want everything fast, okay, we want to access all the services by sitting at our places. That's why. And security risk is also increasing. So with the rapid increase of in the use of internet, security risk is also increasing day by day. Means threat of information, misuse of information, so many types of cyber crimes takes place. It is the duty of every netizen means the internet users. Okay, internet users are known as netizens to use the internet and its services responsibly so that no one can take precautions to keep their computers and online data safe. Okay, so it is the duty of all the internet users to make the use of internet and services responsibly. So we should take so many precautions so that we can keep our computers and online data safe. While working online, a system may get infected with various harmful programs known as malware. Malware means होता है bad software. Mal means malicious. Malicious means whose intention is bad. And software, it is a set of instructions. So malware is a malicious program that enters into a computer and damages it without the user's knowledge. You have seen sometimes your computer, your laptop infected by so many malwares and you never come to know. Sometimes your window crashed, corrupt, or maybe your files are deleted without your consent. So many changes, you will find so many unusual changes on your PC. So when these type of things are happening, it means your PC is under threat. It's not only interrupts the normal working of a computer but also steals important information of a user. So these threats can be very very dangerous because it can steal your personal information or sensitive information also. So what are types of malware programs? Adware. Adware means hota hai, you have seen when you are opening your laptop or PC or mobile, sometimes so many types of ads keep on popping on your screen that send unwanted advertisements, and sometimes you get irritated. These advertisements generally appear in the form of pop-ups which can disturb users working. So it is advised that before installing or downloading any software, use a legitimate site and read the installation agreement thoroughly. Actually what happens when we are downloading any software or any type of software on our laptop or mobile, so sometimes we ignore so many types of agreements, and by mistake suppose you have clicked on that, it also come on your computers. So whenever you are going to downloading anything from the internet, you should read all the instructions very carefully so that you can avoid installing these adwares on your system. Next is a spyware. Spy means hota hai keep spying on your personal activities. It is a type of cookies. I have told you about cookies. Cookies are the small softwares. It is malicious software that secretly monitors the user's computing activities. These programs can collect various types of personal information such as tracking the internet, surfing habits, and visiting web pages by the user or changing the configuration of our system. Spyware क्या होता है? It is a very bad software which keeps collecting your personal information with the help of these small softwares, and sometimes it also collects your surfing habits, your web surfing habits, your personal information, your credit card number. It can even scan your hard drive, your all files, your all chatting secrets, programs, word processor files. So you never come to know, but these things are going on secretly.
Next is virus. Virus, all of you have heard. Its full form is Vital Information Resources Under Siege. Vital means very important information, and siege means होता है capture. So when this bad software enters your system, your whole system is under the full control of this bad software. Your system will not listen to you. It is a contagious program. Contagious means spreading from one place to another, or code that attacks the user system and cause damage to data and files on a system. It adversely affects the performance of the user system. You have seen when virus attacks your system, boot blocks, your operating system corrupt, your files and application software can also uh, infected, so many types of things, so many, sometimes your pc is stoned. If you are trying to store something, you are trying to save something, so you will find an unusual message by saying it will display a message there is no enough memory. Suppose you are trying to access any file, any software, message appears it does not exist. So when these type of things, these type of messages are displaying on your pc, it means something bad. Now worm. Worm is a program which can create multiple copies of itself and can consume large portion of system's memory. Worms actually what they do, they just, when they just enters your system, they keep on replicating. Replicating means होता है अपनी खुद की कॉपी बनाते जाते हैं. worms का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई होना. ठीक है, तो when they keep on replicating, when they keep on multiplying, copying itself, what will happen? Your system will be occupied by a worms. You will not be able to do a single work. Naturally जब worms आपके system पे आ जाएंगे और वो अपने आप को replicate करते जाएंगे, तो आपके system पे कोई memory ही नहीं बचेगी, and you will not be able to access a single file even. It occupies your full memory space. So it will disturb your work and it will harm your all files and folders on the PC. Now Trojan horse. Trojan horse is one of the most dangerous malwares. Why it is known as most dangerous? Because when Trojan horse enters your system, it pretends as it is a genuine software. Even antivirus will not be able to detect it. क्योंकि जो ट्रोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को एक जेन्युइन प्रोग्रामिंग में चेंज कर देते हैं. क्योंकि ट्रोजन भी एक बैड सॉफ्टवेयर है, तो नेचुरली इसकी कोडिंग जो होगी वो बैड होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी. बट ये अपने आप को कैसे हाइड करते हैं? दे चेंज दियर गुड कोडिंग, बैड कोडिंग इनटू अ गुड कोडिंग. तो जो एंटीवायरस आपके सिस्टम पे रन करता है तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो इसकी एंटीवायरस का काम क्या है? कोडिंग को चेक करना. अगर उसको लगेगा कि इसकी कोडिंग गुड कोडिंग है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा. तो ट्रोजन हॉर्स अपने आप को इस तरह से हाइड करते हैं. दे ट्राई टू प्रिटेंड एज दे हैव अ जेन्युइन कोडिंग, सो एंटीवायरस विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट. लेकिन एंटीवायरस उसको कब डिटेक्ट कर सकता है? जब ट्रोजन्स डिस्ट्रक्शन करने के लिए अपनी कोडिंग को बैड कोडिंग में कन्वर्ट करती, क्योंकि डिस्ट्रक्शन करने के लिए तो उनको बैड कोडिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा. और एट द सेम टाइम इफ एंटीवायरस इज रनिंग ऑन योर सिस्टम एंड ट्रोजन्स ट्राई टू चेंज दियर कोडिंग फ्रॉम गुड टू बैड, तो दे कैन बी डिटेक्टेड. अदरवाइज दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. डिनाइल मीन्स होता है हर चीज़ के लिए मना कर देना. एज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, समटाइम्स व्हाट हैपन, इट ब्लॉक्स एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर. योर कंप्यूटर विल नॉट लिसन टू. इफ यू ट्राइंग टू एक्सेस एनी फाइल, एनी सॉफ्टवेयर, it will display a message it does not exist. If suppose you are trying to access something, if you are trying to save something, message appears there is no enough memory space. So it means हर चीज़ के लिए ये आपको मना कर देगा. तो when these type of things are happening, it means there is a denial of service attack. Denial means होता है refuse करना. Rootkit, a malware designed to remotely control your system without being noticed. Once installed, it will remotely access and modify sensitive system information without being tracked by any security program. रूट किट में एक्चुअली क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, वंस इफ दिस सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर, दिस इज़ बैड, ओके, इफ दिस बैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, तो क्या होता है, कोई भी दूर से बैठ के आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, आपको ट्रैक कर सकता है. एंड यू नेवर नो,
आपको पता ही नहीं चलेगा। जब ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है तो यू नेवर नो कि समवन इज सीक्रेटली मॉनिटरिंग यू फ्रॉम द अदर लोकेशन। ओके, नाउ बैकडोर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है, दे जस्ट एंटर योर सिस्टम एंड ट्राइंग टू हार्म। की लॉगर्स भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये बैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज बैड सॉफ्टवेयर्स हैकर्स कैन कैप्चर योर की स्ट्रोक्स। कैप्चर योर की स्ट्रोक्स मतलब वॉट एवर कीज यू आर प्रेसिंग फॉर एंटरिंग योर पासवर्ड्स, योर यूजर नेम, योर पिन कोड, दे कैन कैप्चर इट एंड यू नेवर नो। रैंसमवेयर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इन्फेक्ट्स your computer and display messages and demanding a fee to be paid in order to your system to work in। ransomware क्या होता है, जब ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है अपने आप तो आपका सिस्टम लॉक हो जाता है, ठीक है। एंड यू विल सी द मैसेज, इफ़ यू वांट टू अनलॉक योर सिस्टम यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट, ठीक है। इस तरह का मैसेज आपके सिस्टम पे आने लगता है। लेकिन यू शुड नॉट टू बी वरीड, क्योंकि ये एक सिर्फ इन्फेक्शन होता है, ये एक तरह का मैलवेयर है, तो यू नीड नॉट टू गिव एनी मनी टू समवन। किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उस मैसेज को पढ़ के वो पैसे अकाउंट में जमा भी करवा देते हो तो योर सिस्टम विल नॉट बी अनलॉक। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज़ टाइप ऑफ बैड सॉफ्टवेयर एंड ये सिर्फ एक तरीका होता है पैसे कमाने का। लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं जिससे लोग डर जाएं और अपने सिस्टम को अनलॉक करने के लिए वो आपको पैसे दे दें। तो यू शुड नॉट गेट पैनिक व्हेन यू हैव दीज टाइप ऑफ मैसेजेस ऑन योर सिस्टम। Now next is damage caused by malware। damage क्या होता है, मतलब what type of harms if these malwares enters your system। first is request in frequent freezing और crashing of the system, ठीक है। frequent freezing means आपका सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, very frequently, ठीक है। तो if these type of things are happening, if your system starts hanging frequently, it means it is infected by any malware। जैसे they have given you one example, in 1988 in the USA the Morris worm attacked over 6,000 machines which led to complete paralysis of about 10% of all the computers on the network। तो 1998 में एक बार ऐसा वॉर्म आया था जिसने 6,000 मशीन्स को अटैक किया था और उसमें से 10% मशीन्स इन्फेक्ट हो गई थी। तो ऐसे मेलवेयर्स आते रहते हैं। हार्डवेयर फेलियर क्या हो सकता है, हार्डवेयर फेल हो सकता है, ओके। अ वायरस कैन समटाइम्स कॉज हार्म टू द सिस्टम हार्डवेयर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेलवेयर्स तो इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, दे कैन इवन करप्ट, दे इवन कैन failure your hardware। For example, in 1999 the CIH virus, also known as Chernobyl, deleted the data in the flash BIOS, making it impossible to even boot the computer। मीन्स उसने बूटिंग सिस्टम को ही करप्ट कर दिया था। कई बार ऐसा होता है कि हम बूटिंग सिस्टम को जाके रीबूट कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगता है, बट उसने क्या किया, उस वायरस ने उसको भी इवन करप्ट कर दिया। तो इन दिस वे समटाइम्स इवन दे कैन करप्ट योर हार्डवेयर। Now next is loss of data। A malware can delete different users' documents and can damage different files crucial for the working of an operating system, ठीक है। कई बार क्या होता है, these malwares when enter your system even can delete your important files and documents without your consent। In this way it can disturb your important work। स्लोइंग डाउन द नेटवर्क स्पीड, जब ये मेलवेयर्स नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में आते हैं तो नेटवर्क की स्पीड भी कई टाइम बाद स्लो हो जाती। कैसे, बिकॉज दे कीप ऑन सेंडिंग यू जंक मेल्स, जंक मैसेजेस। तो नेचुरली जब इस तरह के जंक मेल्स आपके कंप्यूटर पे आते जा रहे हैं थ्रू नेटवर्क, तो आपकी नेटवर्क स्पीड भी स्लो हो जाएगी। जैसे वॉर्म्स, अगर वॉर्म्स नेटवर्क के थ्रू आना स्टार्ट हो जाते हैं तो दे कीप ऑन रेप्लिकेटिंग एंड इट विल स्लो डाउन योर नेटवर्क स्पीड। आफ्टर द कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम, कन्फिगरेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोसेसिंग सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। सो इवन दीज मेलवेयर्स आर टू डेंजरस, इवन दे कैन चेंज, ऑल्टर मीन्स होता है चेंज करना, मॉडिफाई कर सकते हैं आपके सिस्टम के कन्फिगरेशन को, आपके सिस्टम की चेंज सेटिंग्स को, वर्किंग को, एंड विच कैन अफेक्ट योर वर्किंग।
Monitor user surfing habits. Some malwares are too dangerous, as I have told so many times, they keep eye on your surfing habits. आप कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो फ्रिक्वेंटली, उस वेबसाइट में कौन से पेजेस को विजिट करते हो, क्या आपकी हैबिट्स हैं, तो ऑल दैट. Steal sensitive information by altering security settings. Okay, even they can steal your confidential information which you don't want to share with anyone, like bank account number, pin number, Aadhaar card number, passwords. So these type of informations are very very sensitive. But by altering means होता है change करना, तो they can even change security settings of your softwares and can steal your personal information. So in this way, these are the damages which can be done by malwares. Now next is safety measures. So what safety measures we should follow? First is security programs. Installing reliable antivirus software is must. हमको क्या करना चाहिए? We should use so many security programs, like we should have antivirus software and it should be properly updated. अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार antivirus software खरीद लिया तो आप उसको सिर्फ रन करते जा रहे हो. It will not be able to detect new viruses. antivirus को अपडेट करने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो antivirus होता है उसके अंदर जितने भी बैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, नया वायरस, नया मेलवेयर, और वो उस नए वायरस, अगर एंटीवायरस को आपने अपडेट नहीं किया तो इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट न्यू वायरसेस. तो दैट्स वाई यू शुड कीप योर एंटीवायरस अपडेट. आपको फायरवॉल्स इंस्टॉल करनी चाहिए. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी सर्वर विच कैन क्रिएट अ वॉल बिटवीन इंटरनेट and your network so that no illegal network can enter. Secure internet access. Be vigilant when accessing or uploading information on the internet. ओके जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो या अपलोड करते हो, यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर, इंटेलिजेंट, विजिलेंट होना चाहिए. ओनली सिक्योर साइट शुड बी यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आप कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो यू शुड चेक द एड्रेस बार. देयर शुड बी HTTPS और देयर शुड बी अ लॉग पैड. Now next is avoid spams. You should never open spam mails. Spam mails क्या होती हैं? जो बार बार एडवर्टीजमेंट्स करती रहती हैं, जो बार बार सेम मेल को आपको सेंड करती रहती है. तो दिस टाइप ऑफ मेल्स आर नोन एज स्पैम मेल्स. तो जब भी आप इस तरह की अनवांटेड सोर्स से स्पैम मेल्स, स्पैम की सबसे बड़ी पहचान है जो स्पैम मेल्स होती हैं उसमें आपके कभी भी सेंडर का एड्रेस ही नहीं होता है. तो ये दिस वे यू कैन रिकॉग्नाइज द स्पैम मेल्स. बैकअप. टेकिंग बैकअप्स. आपको क्या करना चाहिए? यू शुड टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ योर इंपॉर्टेंट फाइल्स. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स और फोल्डर्स हैं, यू शुड कीप इट्स बैकअप एंड कीप इट ऑन गूगल ड्राइव और एनी अदर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. सो डैट ऑनलाइन रखना चाहिए, सो डैट नो इफ़ योर हार्डवेयर और योर सॉफ्टवेयर इज क्रैश्ड तो यू कैन हैव योर इंपॉर्टेंट फाइल्स सेफ. Scanning all portable devices. If you are using pen drive, CDs, DVDs, you should properly scan it so that no malware can enter. Disable cookies. आपको cookies को disable रखना चाहिए so that they cannot access your information. On web browser. Netiquettes means होता है, net means होता है network and etiquettes means होता है moral practices और ethics. Cyber world is an ever increasing mesh where thousands of users and machines are added to the network. Each day in such a world, it becomes imperative that its users follow certain guidelines, ensure seamless flow of information. ठीक है, तो हमें एक नेटिकेट्स की तरह बिहेव करना चाहिए. वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन moral practices, good and bad practices. Indulging or promoting cyber crimes, indulging cyberbullying, cyber stalking, flaming, we should avoid all these. So these are all types of categories of cyber crime. So we are going to learn cyber crime. Different types of cyber crime क्या होता है? When we are making any online illegal activity facilitated by the use, means अगर किसी online means where we make the use of gadgets over internet and making and doing illegal activities, तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं. नाउ लेट्स रीड साइबर क्राइम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? टू फॉलो. स्टॉकिंग मीन्स होता है टू फॉलो अ पर्सन इन एन अनोइंग वे. मीन्स किसी का पीछा करना बहुत ही गुस्से में, एकदम अनयूजुअल वे में. मीन्स
किसी से बदला लेने के लिए, किसी को हैरेस करने के लिए. इट इज़ अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बाय सेंडिंग इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेजेस पोस्टेड टू अ वेबसाइट और डिस्कशन ग्रुप फॉर रीजन ऑफ एंगर. मतलब किसी को बार बार मैसेजेस करना इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स पे उसके बारे में गलत पोस्ट करना, उसको मतलब उससे रिवेंज लेने के लिए, उसको इरिटेट करना, उसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग. साइबर बुलिंग. बुलिंग मीन्स होता है बिहेवियर ऑफ अ पर्सन हु हर्ट्स और फ्राइटेंड समवन. मीन्स इस तरह से किसी को हैरेस करना, किसी को नुकसान पहुंचाना जिससे कोई दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग. इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिबरेट मैनर. दिस इंक्लूड्स इंसल्टिंग रिमार्क्स एंड थ्रेटनिंग मैसेज. मीन्स किसी को ईमेल के थ्रू धमकाने वाले मैसेजेस भेजना, ठीक है. स्प्रेडिंग बैड रूमर्स अबाउट दैट पर्सन टू हार्म इट्स रेपुटेशन, टू डिफेम हिम, एंड पोस्टिंग और अपलोडिंग बैड वीडियोस टू हर्ट द पर्सन. मीन्स किसी को रेपुटेशन को हार्म करना को कहते हैं साइबर बुलिंग. साइबर एस्पिनेज. एस्पिनेज मीन्स होता है एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कंट्री. मीन्स सीक्रेटली किसी दूसरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना. ये इसमें इंक्लूड होता है रिलीजियस मैटर, पॉलिटिकल फैक्टर. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन फ्रॉम इट्स ओनर्स और होल्डर्स. मीन्स किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बिना उसकी इन नॉलेज के. Cyber spionage is most often used to gain strategic, economical, political और military advantage and is conducted using cracking techniques and malware. तो इसमें political issues होते हैं, religious issues होते हैं, जिसमें countries एक दूसरे को dominate करने के लिए या उनकी secret information को find out करने के लिए misuse करती हैं साइबर का. साइबर warfare. Warfare means होता है fighting, means fighting by making the use of internet. It involves use of information technology by nation states to penetrate another nation's network to cause damage or disruption. Though cyberware, countries can completely freeze the vital resources like public transport, banking system, internet, communication technology of another country. This can bring the economy of the targeted country at complete standstill. Means किसी भी कंट्री की सारी प्रॉपर जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग सिस्टम है, उनके इंटरनेट है, उनको बिल्कुल फ्रीज कर देना, बंद कर देना, उनकी इकोनॉमी को हार्म करने के लिए. साइबर वारफेयर हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट थ्रेट टू द सोवर्जिनिटी ऑफ कंट्रीज. लोग क्या करते हैं, साइबर के थ्रू गलत अफवाहें फैला देते हैं कि वहाँ पे ऐसे हो गया, उस कंट्री में ऐसे हो गया, जिससे उनकी कंट्री को किसी भी तरह का इकोनॉमिक हार्म हो. साइबर टेररिज्म मीन्स ट्राई टू क्रिएट टेरर, फियर विद बाय मेकिंग द मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेररिज्म मतलब समझते हो अटैक करना, किसी को डराना, धमकाना, तो वो काम ये करते हैं साइबर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू. साइबर टेररिज्म इज़ द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग टेररिज्म थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन ऑर्डर टू कॉज फियर एंड पैनिक. लोगों में डर फैलाना. Cyber terrorism involves large-scale disruption of computers, telecommunication networks, or information systems so as to compel the government or its people to fulfill some social, religious, or political objectives. Okay, मतलब टेररिज्म, जो टेररिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है, वाई दे डू सो, बिकॉज दे वांट टू गेट फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. क्योंकि वो गवर्नमेंट को, उनका मेन जो टारगेट होता है गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो उनसे बदला लेने के लिए, उनसे ज़बरदस्ती अपनी विशेस को फुलफ़िल कराने के लिए वो लोगों में टेरर पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं. तो वो ये काम अब कैसे करने लगे हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी. तो वो क्या करते हैं, अब निशाना बनाते हैं कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स के थ्रू मेलवेयर्स स्प्रेड करना, वायरसेस स्प्रेड करना, जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए. क्योंकि आजकल हर कंट्री के लिए उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, उनकी सारी वर्किंग ऑनलाइन होती है. तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग को डिस्टर्ब करने के लिए वायरस स्प्रेड करते हैं, जिससे लोगों में फियर हो, टेरर हो, और वो अपनी बात जो भी मनवाना चाहते हैं वो मनवा सकें. नॉ एक्सटॉर्शन. इट इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एन अटैक कपल्ड विद अ डिमांड फॉर मनी. एक्सटॉर्शन मीन्स होता है
गेनिंग ऑफ मनी बाय एनी काइंड ऑफ फोर्स मीन्स ज़बरदस्ती पैसे कमाने के लिए किसी को धमकाना, ठीक है। साइबर एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व अ डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस। अभी मैंने आपको बताया ना डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर आपकी सुनेगा ही नहीं, इट विल बी अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ समवन। और इंस्टॉलेशन ऑफ रैंसमवेयर, ऐसे रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए तो इट विल डिमांड फॉर मनी by saying that it will unlock then you will pay that much amount, but it is you need not to worry। कभी भी हमें इस तरह से चीज़ों से डर के पैसे वगैरह नहीं उनको देने चाहिए। you should go to a skilled person, to an expert, so that he can remove these type of malwares from your system। Sexting means sending or forwarding exposed sexual materials to others without taking others consent। दिस टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज टू डिफेम। डिफेम मीन्स होता है किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, इमेज को हार्म करना, बदनाम करना जिसे हम कहते हैं। अदर्स और टू कॉज हैरेसमेंट। द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज बिंग टू अब्यूजर्स टू रीच एंड सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन। ये सब आजकल लोग जो चिल्ड्रन होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें ज़्यादा की जाती क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं होती। जैसे या बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती और वो कोई भी अगर ऑनलाइन इस तरह की धमकियाँ या इस तरह के वल्गर पोस्ट उनको करता है या धमकाने की कोशिश करता है तो वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। बट यू शुड नॉट टू बी वरीड। ऐसा वो कुछ नहीं करते जैसा वो आपको कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कोई टीज़ करने की कोशिश करता है ऑनलाइन तो यू शुड टेल टू योर पेरेंट्स, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ आपको डराने धमकाने के लिए किया जाता है। नाउ अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम, पेरेंट्स कैन विजिट अ नियर बाई पुलिस स्टेशन एंड कैन लॉज अ कंप्लेन। अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई किसी को हैरेस कर रहा है, डिफेम कर रहा है, कोई गलत तरह के मैसेजेस सेंड करता है, तो what you should do, you should inform your parents and your parents can visit a nearby police station। वहाँ पे भी जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। The IT Act has global jurisdiction। It means that you can lodge a complaint against the crime from any state or city। आप बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। टू नो मोर अबाउट साइबर लॉ, टू रजिस्टर अ कंप्लेंट यू कैन विजिट द फॉलोइंग लिंक एंड आइदर यू कैन गो ऑन दिस URL and by clicking dot on that you can complain, okay, you can make a complaint or register a complaint। Now next is cyber law। अब cyber law क्या है? To protect against these cyber crimes there are so many laws are made। ठीक है, अगर साइबर क्राइम होता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है ऑनलाइन, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, साइबर लॉ इंटरनेट लॉ इज अ टर्म दैट इनकैप्सुलेट्स द लीगल इश्यूज रिलेटेड टू द यूज ऑफ इंटरनेट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राइम्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। जो भी फ्रॉड्स होते हैं, फिशिंग होती है, अर्जेंट नीड वॉज फेल्ट टू रिड्यूस एन एक्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट सच क्राइम्स। विद दिस व्यू इन माइंड द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड IT Act 2000 ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और IT Act on October 17, 2000। द एक्ट वॉज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड फॉर कंट्रोलिंग साइबर क्राइम्स। तो बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एक IT Act 17 अक्टूबर 2002 को बनाया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे laws define किए। The prime purpose of this act was to provide legal recognition to transactions carried by means of electronic communication referred to as electronic commerce। electronic commerce जैसे कि आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत सारी आपने देखा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं, तो उन सब को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। Now, what is the importance of cyber law? It is important because of all the aspects and activities related to the internet are covered with it। In other words, cyber law is a law which is specially used to deal with crimes related to e-commerce। यानी कि कल को कोई भी XYZ ट्रेडिंग में या किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है तो लोग को उस तरह के क्राइम से डील किया जा सके। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने चाहिए। अब आपने ऑनलाइन कुछ परचेज़ किया या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आजकल आप शेयर रिसिप्ट का ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो ये सब क्या हैं? एविडेंस हैं, प्रूफ है। एंड साइबर स्पेस, इट ऑल्सो कवर्स अदर एरियाज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। अगर आपने कुछ एकदम अपनी इनोवेशन, अपनी स्किल्स यूज़ करके बनाया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं, पेटेंट कहते हैं।
राइट प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस मीन्स आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो आप मैसेजेस सेंड करते हो, पोस्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, एंड ऑनलाइन प्राइवेसी। अदर देन दिस, साइबर लॉज कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन मेजर अगेंस्ट थ्रेट्स लाइक साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर एंड साइबर। तो जितने भी साइबर क्राइम हैं, दीज ऑल कम अंडर द साइबर लॉ। मीन्स यू नीड नॉट टू वरी, किसी भी इस तरह का कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसको हम साइबर लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज completed today, and in the next class I will send you the question answers of this chapter. So you please read this chapter from this book. You need not to prepare any notes. I am not sending you any notes from this chapter, because this chapter, it's each and every word is very very important. So you please read this chapter from the book. Thank you.